तो मैं जवान हूँ. It's almost like a mission statement for ICC कि ICC में आओ, मजे करो, मजे से बातें करो, गाओ, हंसो हंसाओ, and then create this atmosphere which makes you young. A lot of the research that's coming out is showing that if you do singing, dancing, and laughing, you will reverse your aging. मैं उस दिन उसकी अपना दीपक चोपड़ा की वो सुन रहा था. He said, हम unnecessary सोचते हैं, we are doing here. And that's what we want to try to inculcate in others also, share our joy with others. And there are many, many people in our group who maintain that attitude of Abhi to main jawan hu, and we bring those to you. So today also we have 4 people who will be sharing their secret of being jawan. So the way this name came out, and I know ye isme Zeba ji involved thi और योगेंद्र जी involved थे, but उससे पहले हमारे एक वो टीवी एशिया प्रोग्राम है, उसमें every evening from 8 to 9 पुराने गाने आते हैं और तबस्सुम जी उस प्रोग्राम को कंडक्ट करती हैं, और उसकी ओपनिंग जो होती है वो इसी गाने से शुरू होती है, अभी तो मैं जवान हूँ. तो मुझे उसके लाइनें बड़ी अच्छी लगती हैं. उसमें ऐसे I tried to copy those lines and I'm going to share them. I'm not a singer, but I want to sing those lines. खुशियों के दिन बिताए जा, दिल के तराने गाए जा, दुनिया मेरी बनाए जा, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ. So that's the secret here. खुशियों के दिन बिताए जा. And we are going to today talk to these people, how these people do those things there. So with that, I am going to welcome, by the way, this program is almost like जैसे वो Coffee with Karan hai. There used to be many programs in America also. And इसको हमने अभी तो मैं जवान किया है, and there is some talk कि इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डालेंगे या डिसकंटिन्यू करेंगे. But if इसको डिसकंटिन्यू करेंगे तो you will have drink with Dinesh. So नया प्रोग्राम शुरू करेंगे. सब आपको जो है, जो नहीं भी ड्रिंक करते, अपनी चाय, कॉफी, वाइन, स्कॉच जो लेके है आप आ सकते हैं, और we'll start another program. Good so idea. I promise you that, but I think this will it will be on a temporary hold, but we will continue this program because it is such a wonderful program. So with that, I'm going to invite somebody whom I met less than a year ago, and she has amazed us with the amount of energy she has and the things she does, and she truly represents Abhi to main jawan hu. With that, I am looking for Raji Shri Rangarajan. Actually, full name is Rajshri Shri Rangarajan. Rao साहब आप उनको हाईलाइट कर दीजिए. तो hello Dinesh. Hi, ma'am. I want to see you on the main screen. Abhi. I'm here. There you are. There you are. And Raji is on the board of directors of ICC. She joined about a year and a half ago. And somewhere along the way, she took on the charge to expand ICC into West Valley, got very actively involved, and spends most of her time doing activities to make ICC success. But more than that, she brings in a lot of energy. And I'm going to start ask first question, how did you decide to get on the board, and what excited you? Just share with us. Why did you decide to do that? It was a funny story. I approached this gentleman who was a real estate. Me and my husband, Shekhar, we both were interested in performing arts, the classical Sangeet. And we both, we host a lot of house concerts. That's how it started. And this was pre-COVID days. And we said we need a bigger platform to bring in more people. So we set out on a journey to look for a bigger space, and one conversation led to another, and this realtor said, hey, why not I introduce you to ICC, to Raj and the team, and see if the synergy meets, then we can use that platform and bring your interest and ICC's interest together.
and make it happen. So solely we started with the classical Sangeet music and of course dance and other parts, but mainly classical Sangeet. So that's how we started. So this was 2019. And the day, that was a Saturday morning, we went around looking for sites, places, properties. Didn't like anything, but Deepak Chandani, he said, why not go to, are you free tonight? And we both were empty nesters. That was the first year. Our second daughter went off to college. Said, would you like to join our table for the banquet? And there we were at ICC Milpitas attending the banquet on 20, it was a September date. I forget the date, but 2019. 19. Yeah, So that's from where it started. That's where it started. Yes. But you've been involved in the music for a long time. Tell Yes. me, growing up, how where did you grow up, and how did the interest of music come along in your life? Well, as a kid, I was very. My mom was my music teacher. She's classically trained. She's done all the exams, and she's a music teacher. I grew up in Delhi. All my life, I lived in Delhi, and my sister was a good girl. I would sit in the class. I was the youngest. I would do sa, pa, sa. I would be out of the door. So that was my discipline with regards to music. But I picked up music fast, and mom was very proud of me. But I wouldn't sit in one place. So I was a very, very naughty girl. So, but you keep listening as a child when you're, so soaked in music. And my dad used to chant Vedas. These are all part of music that helps you. And it won't, so growing up, I was a stricter mom, and both my kids were into classical music and dance. But I was a naughty kid. You still are naughty. I can see that in your eyes. I also wanted to say something. Still he must. So now in Silicon Valley, बच्चे गए घर से, and कोई रवानी आई, something happened in your head, you wanted to take leadership role, and you started pushing that. Tell me, give me the secret. How did that happen? Actually, I was a department head. I led my department as a speech pathologist in the agency I was working at, and for 25 years. And I was I was the chair of the department, so I led the. But something clicked. Something happened when my younger daughter went off to college. 2018, that's when I turned 50. I'll give you my secret. The secret is out. So you don't look 50. October. You only look 40. So thank you. So October, 2018, I turned 50, and I decided, now I'm going to take off. I'm going to take a break from my 9-to-5 job. And I think it struck a chord where I said, I need to do something for myself. So all these years, not that I didn't enjoy, I still do that work, but in a very limited scale because I have other interests. But that's when I wanted to take a break, a shift, take a step back and say, what do I want to do? Something I want to do. Yes, this is a service model where I work with kids with special needs and young adults, but then I want to do something in the lines of arts because I equally love arts. So that's where it started. What are dreams and aspirations going forward? Now, I know you're doing a great job with West Valley, and so share with us, where do we go with West Valley and ICC and any other organizations that you're involved? I'm very much interested in youths. So working with the youths from young age, I always gravitated towards them. In my work, I created, a theater program as part of an intervention plan for the kids on the autism spectrum. And I love working with youths. So at any level. So with this ICC West Valley, I want to make it big where more youths get a platform to express themselves.
They need we have other programs like seniors and others, fitness and all this. This is everywhere, but youth are the next, in the pipeline, and we need to understand them better and serve them so they can reciprocate as well and understand each other. You raised two beautiful daughters, and they are into their late teens and early 20s there. If you had to do anything over again or give message to younger youth, upcoming children, what would that be? How would you tell them to do things differently, or whatever message you want to give to them? I would always say that no matter what you do, your academics and everything, set aside a time for yourself. Do something that you would love to do just to help yourself. Academics, all these are the pressure that's in the society. But take a part of your time, of your life, to do things to recognize who you are. Because that's when you express yourself, you go and face the rest of the world, you will be able to dig deeper and identify that, hey, all these things that I've learned are, meaningless if I don't reach the inner me. So spend some time for yourself. Find yourself. Find something that really turns you on. Really, really. You need to find your love. You have to love yourself. Yeah. Yeah. Now, you've been coming to our seniors programs, and you have, seen our seniors here. If you had to give a message to them, what would that be? There are lots of things. But seniors are kind of, they are the bridge that connects the younger people to their kids, their own kids. So their role is to bridge that gap because they've seen both sides of it. They've been the parent of their own kids, and they're seeing the next generation, right? Next generation. So they have this liberty to be mature, at the same time be immature. Not immature in a bad way, but be playful I know as their kids are, and be adult-like, and don't give any, you can spoil them, but definitely show them what it takes to be a parent, and the perspective of what their own parents, the kids' parents, are going through. You try to understand and give them a perspective. So it's the seniors, I guess, they can play this role, and with more authority, since they've been through it. They can say, hey, you know what? I did this mistake myself. I think my kid is doing that mistake. But as a son or a daughter, my grandchild, you will learn, and please express and talk to me. The grandmas and grandpas should have that connection with their some grandparents say, बच्चे सुनते नहीं हैं, बिल्कुल मानते नहीं हैं. You got any trick there? कैसे उनको थप्पड़ लगाओ, कैसे उनके साथ silliness करो, कैसे connect करो उनके साथ? One thing I would say is not to pass some judgmental remarks on the parts of the seniors. Don't put them in a box. We do it. As a parent, we do it. It's kind of a harsh way of, being a parent or a grandparent. And kids learn the same thing. They might say that you hurt my feelings, but they will learn to do the same thing. So undo that by not putting them in a box. ये मत बोलो कि बस तुम ऐसे ही हो. Don't put them and define them. Very good advice. I like that. Now I'm going to get into your personal life, and let's see how much we can dig out of there. So, इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी हो, musically talented हो, कितने love affairs हुए? ये सारे बताने पड़े. And then how did you shake her? Yeah. वो बताऊंगी. Growing up, I was more like a tomboy. मुझे लड़कों की तरह I used to behave. Growing up, this is my secret. I would ask my mom, why wasn't I born a boy?
कि मैं ये करती, मैं वो करती, मुझे लड़का बनना था, मुझे लड़की क्यों बनाया? that was me, you know. I was a tomboy to पूरी तरह से. बहुत सारे friends सारे थे, लेकिन you know I'm a very picky person. मैं देखती हूँ, you know, I kind of scan a person and say नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं दौड़ेगा. तो फिर शेखर को कैसे पकड़ा? I used to work in Bangalore Institute of Speech and Hearing. तो वहाँ मेरी colleague much older to me, तो वो उनका नाम था उमा, वो पूछ रही थी मुझे, अरे 22 साल की हो गई हो, क्या तेरे पेरेंट्स को कोई सीरियसनेस नहीं है क्या? You know, they don't want you to get married off or anything. So मैंने कहा, I don't know. मेरे डैड, मैं जब मम्मी से बात करती थी उसके बारे में, तो मम्मी बोलती है, तेरे डैडी के पास ना कोई आ भी जाए ना, तो he will deflect it, he'll send it, the horoscope, he'll send it to somebody else. And नहीं, मेरी बेटी की वो तैयार नहीं है. So my dad wasn't up for, you know, giving me away. So he was, मैं उनकी लाडली बेटी ठहरी. लेकिन in Bangalore, my colleague Uma, she said, hey, you know what, I know somebody, my own neighbor's sons. So that he's coming back from India, and would you mind? You mean from America? He's coming from US, yes. And would you like to, you know? I said, I don't know. I need to get my parents okay. And so, and this is Bangalore, and my parents were in Mysore. So I called up mom. I said, Ma, is it okay? And she said, okay, should be okay, fine. So I went, checked out his family because he was still in US. He was on his way. So it's kind of उल्टा हो गया. यहाँ पे usually लड़के लोग घर आते हैं, लड़कियों के घर. मैं उल्टा उसके घर चली गई. हाँ, मिली उनके मम्मी पापा से, भाई और भाभी से, सब मिल के आई. And Uma asked me, so how's the family? I said, family looks good. And then अभी लड़का नहीं है वहाँ पे, वो आने वाला है. तो एक हफ्ते के बाद he came to my friend's place. That's where I stayed. So he came, and then I went back to his house. So baat ki, or my mother-in-law was so sweet. She was peeking through the kitchen door and seeing कि ये लोग क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं. तो कितनी डेट मारी उसके साथ, कितनी दफा बहुत. मेरे पास तो passport नहीं था, तो मैंने सोचा कि I was not in any kind of, I had no plans. तो दोनों निकलते passport office to pick it up, you know. And on that pretext मैं घुमाई उसके साथ. मेरा शौहर वो ही पला तो था बैंगलोर में, लेकिन उसको बैंगलोर उतना नहीं मालूम था. वो he wouldn't go out of IISC quarters. So but मैं उसको घूम के 1 साल 1.25 साल वहां पे तो बिताया था ना बैंगलोर, तो मुझे पूरी बैंगलोर मुझे मालूम था. तो उसको so I ऑटो में गए, घूमे. तो उसने प्रपोज किया कि तूने प्रपोज किया उसको? Well, वैसे directly कुछ नहीं हुआ. I said, what do you think? And we both okayed it. We both okay. That's so sweet. So what did you like about him? What's the two things you liked about him? So एक तो है, पहले मैं उससे personally in person meet करने के पहले, when I met his parents, they said he makes one particular dish really well, and he plays mridangam, which is a South Indian musical instrument. Right. And growing up, my favorite instrument was mridangam. So I said, wow. I mean, I don't even have to see the ladka. I know he makes good this food item, which I love. And he plays mridangam. I said, I think must be a good boy. तो कौन सी food item कौन सी थी, वो भी share कर दे. वो एक कड़ी है, कड़ी के जैसे, साउथ इंडियन का मोरकोरम बोलते हैं. वो है दही का बनाया हुआ. And he is a very good cook. So especially South Indian meals. I've met him, and he's a very, very nice guy, and you're beautiful daughters. कोई और secrets हैं जो share करने हैं यहाँ पे? कोई और डिंग मारनी है, कुछ करना है तेरे को? Open 2 minutes हैं, जो मर्जी बात कर. कोई चीज और share करनी है, बता दे. किसके बारे में बताओ? किसी चीज जो तेरी जिंदगी का सीक्रेट है, किसी ने सुना नहीं पहले कहीं, अभी सुना दे कोई नई चीज. मेरा favorite drink है scotch.
Scotch drink. अरे वाह, ये मेरी favorite drink भी हो. So, I love that. और दुनिया को क्या मैसेज देना है? सारी दुनिया को राजश्री का क्या मैसेज है? कि don't look for immediate gratification, that is तुरंत हो जाए सब कुछ. ये अभी की जो दुनिया है, हम एक बटन दबा दे तो तुरंत हो जाती है ना? Don't get sucked into that kind of lifestyle. Learning is a process, living is a process. We have to take every step of the way slowly, let it sink in. We need to enjoy every moment. Don't go looking for your final product or ultimate destination, in a snap of a finger. So button dabate hi kuch ho nahi jana chahiye. And that's my message. That's so beautiful. बड़ा wisdom आ गया इतनी young age में तेरे. Thank you very much for Thank you, Ji. joining us today. It's beautiful, beautiful. Everybody, give a round of applause to Rajshri Srirangarajan. Thank you, thank you. That's beautiful. I'm so impressed. I didn't know all these things. Very nice. Mazak. Well, I love this program, and the only song that comes to me. Huh. हूँ अभी मैं जवां ऐ दिल, हूँ अभी मैं जवां, बेहोश हूँ बिन पिए, कल कभी हम किस लिए, बेहोश हूँ बिन पिए, कल कभी हम किस लिए, हूँ अभी मैं जवां ऐ दिल, ये मीटिंग तो इकट्ठे एक रूम में होनी राजी चाहिए. राजी कमाल कर दिया, गाना गा के तो कमाल कर दिया आपने. मजा आ गया. You are बहुत खूब. wonderful. वाह 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 वाह. राजी, आपको मैं अपने चौपाल में इनवाइट करती हूँ. प्लीज आप हमारे को आगे Oh गाना my सुनाइए. You did so well. It's so nice. What so a beautiful beautiful. voice. Wow. Wow. Thank you. Wow, Beautiful wow. voice. You are very good singer also. That's Oh, right. thank you. बहुत. Very All good. right, Ji. Thank you, thank you. And we are limited on time. I could have gone on for 2 hours here without any this thing. I have lots of questions. Next time करेंगे. और scotch पी के करेंगे next वाले interview. All right, Ji. With that, thank you, Rajshri, and let's get Mr. Sharma. I keep calling him VNS Sharma, but I think he's VLN Sharma. उनको जरा highlight कर दीजिए, राव साहब. हैं शर्मा जी के भाग गए, वो भी सुबह इंडिया में उठे हुए हैं. He should be here. I've seen him. शर्मा जी. मैं करती हूँ उनको. अभी कर देती हूँ. Okay. There he is. ये हमारे शर्मा जी लगते नहीं निर्मल बाबा जी जैसे. याद है? कोई प्रेडिक्शन दीजिए निर्मल बाबा जी, मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. कोई प्रेडिक्शन दीजिए, क्या हो रहा है, मेरा प्रोग्राम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है. म्यूटेड है शर्मा जी, आप म्यूटेड. भैया बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम. थैंक यू, थैंक यू. 2 लड्डू खा लीजिए, प्रोग्राम अच्छा चलेगा. निर्मल बाबा जी का prediction. You can hear me? Yes, we can hear you. Yeah. आपका प्रोग्राम हर टाइम अच्छा रहता है, अच्छा रहेगा भी. नो क्वेश्चन अबाउट इट. पर उसका सीक्रेट यही है, हम आपको लाते रहते हैं हमारे अपने बड़े प्रोग्राम्स में. आई नो दैट आल्सो. सो ये बताइए, हमारे तो शर्मा होते हैं, आप शर्मा कहाँ से बन गए? नहीं, साउथ इंडिया वी शर्मा, SARMA, it's an indication that belong to Brahmin community. Brahmin community. That's what I was going to ask. Yes, So yes. So Yes. आप अपने बारे में बताइए, कहाँ पे ग्रो अप हुए, क्या एजुकेशन है, क्या थोड़ा सा काम वाम किया, in a short way, not too long, but थोड़ा सा बताइए अपनी बैकग्राउंड. Yes. Actually, I'm born at Amalapuram, a place called Amalapuram in East Godavari district, Andhra Pradesh, way back in 1953, 5th December. Okay. Then I had done my engineering in Visakhapatnam. I am the youngest of the 4. I have an elder brother, 2 elder sisters. I am the youngest. Of course, after engineering, I worked as a marine engineer for a couple of years on board merchant navy on board ships. Afterwards, I was in the field of construction, executing turnkey projects for Tata Robbins Fraser Limited, Jamshedpur company. It's a Tata organization.
then Western Crompton Engineering, Chennai. And during that time, I was traveling all over North India because of the project sites. There are transfers for every year or two, maximum 2 years was the longest period I stayed at any place. Then I was transferred to Visakhapatnam on a Visakhapatnam steel plant project. At that time, it was under construction. So at that time, I met my classmate who was running the dealership of Cummins India Limited. So he asked me, why don't you join me? We'll have a good way ahead. I hesitated because that time I was working for Western Crompton. It's a multinational company those days, very, very popular and very famous, internationally known company. And this company is not known to beyond Visakhapatnam. Nobody knows this company. I said, no, I may not be agreeing. But then I was transferred to Cochin. After this Visakhapatnam project, I was transferred to Cochin. There, I went there. But somehow I got a feeling that is not the place for me to work. Okay, even though it will be over in 6 months' time. Then I came back to this gentleman. My children also, they're coming to a little higher class means third standard, second standard, not very high. During these 3 standards itself, my daughter has 4 uniforms because of the transfers. So we had to shift from place to place. Place to place. Yeah, place to place. So, and Visakhapatnam has all educational facilities. It's a very good, calm and quiet place those days. So I took a call. I said, okay, I'll join with you. No problem. So we had some agreement, but all my relations, my other friends cursed me like anything. You have done the greatest mistake of your life of leaving a company like Western Crompton and joining this. But anyway, I never regretted that decision and it went on very well. And I made that company a small to a bigger company. It was earlier in the last rung of the leader list. Out of 92 dealership, it was ranked 89 when I joined that company. In about 10 years, I made it to the top 10. In terms of turnover or quality of service, whatever it is. So that is a great achievement. So I had no regrets and I worked with that group for 25 years. Then what happened? The next generation took over on the management side. Naturally, there is a deviation in thought process. Thought process did not match. So I had to leave them. Achha. Even though I have energy to work, I was willing to work, but the seniors wanted me to work, but the youngsters said, no, we don't want you because you don't listen to us. Because I do what is right for the company, but they want me to do what they want to do. It may not be right. So that was a conflict. So I left that, and that was in 2014. I see. 2014, I left them. Since then, of course, my children are good boys, a good girl, and very nice, disciplined people. They are now settled. Daughter is in They're US. settled in the Bay Area, right? That's where you come. Yes. But बताइए उनके बारे में थोड़ा सा. My daughter, she has done her engineering and MBA in from Mysore. Mysore. Then she started working for SAP India in Bangalore. After marriage, she shifted to US. Then she has done her MS there, and now she's working with what is that? LinkedIn. LinkedIn के साथ. LinkedIn के साथ last 8 years or so. She is blessed with a daughter, and my son has done his engineering and then MBA in ICFI, Hyderabad. Then he joined banks, ICICI Bank. Now he is with Axis Bank. He's in Hyderabad only. We live together. He has a daughter and son. Most of you have seen my grandchildren. They zoom in here whenever I join, log in. So that is about my life. After retirement, I started traveling around India. That is my passion, actually. Travel is my passion. Earlier, traveling was different on professional work. This time, only for my sake. And fortunately, my wife also likes traveling. So we have long trips, not long, 1 week trips, at least 2-3 trips in a year. Otherwise, when we don't come to US, if we come to US, it short down to one trip only. Well, So you have this almost like a free man, this thing, जो करना है, दिल में जो आता है. Where did that come from? Every time I watch you, you are doing what you want to do. Tell me, how did that come in your personality?
Actually, my role model is my grandfather. Acha. He was a doctor, a qualified doctor, first batch student of Andhra Medical College, Visakhapatnam. So he is absolute terribly disciplined. His routine starts by looking at his dress. We know what is the time. You can say that to that extent. Morning walk, then puja, then go to hospital, then take rest in the evening, again go to hospital. He has a clinic, a full-fledged, not a clinic, a full-fledged hospital with the inpatients, operation theater, everything. And he maintains meticulously his accounts. And when I was a kid, I'm very close to him. So he used to write his accounts every day in the morning. After his puja is over, before going to the hospital, he writes down his accounts, what is the income, what is the expenditure. Okay, I don't understand those days what he was writing, but now I can. So, and he has four dabbas, 1, 2, 3, 4, like kitty banks. He used to drop some money in each of them. I asked, what is this? Why don't you put in one dabba? Why 4 dabbas? So he used to tell me something. Actually, it is for different heads of expenditure. That I understood later. Okay. So that discipline, financial discipline, time maintenance is very, very punctual on these timings. These two, and absolutely outspoken. I will tell you one, not a sad incident. What happened? My uncle, that is his son, he expired at the age of 37. That time I was around 12, 13. My age is around 12, 13. Being a doctor, he has closed down his hospital for 3 days. On the third day, he opened his hospital after the death of his son, 37-year-old son. All the relatives were, those days, no relatives come to our house. No? So they were criticizing like anything. You fellow, are you so crazy for money? Your son, 37-year-old son, expired just 3 days back. Why you opened your clinic? You know his answer? I still remember his voice, also remember, it's in my mind. He says, you fellows, I lost my son. It's the loss for me. But if I close my clinic for these 10 days or 12 days, every day 40 to 50 patients come to me struggling for their lives. If I close down, at least 300 to 400 families lose their breadwinner. You want me to stay at home because I lost my son? That is his philosophy. Wow. That was his philosophy. And if he wanted to earn money, he could have earned a lot of money. He never did it. That has said, yes, do what is right. That is the first lesson I learned from him. And from my father, he's an advocate. He was an advocate. He is also, of course, discipline-wise, yes, equally. And we are very scared of I was very scared of my father, even though he never beaten me. He never said a harsh word to me. Looking at himself, we used to run away to the other side. But he was the additional public prosecutor. You know what is an additional public prosecutor? You see, if there's a murder case, from the government side, it goes to the public prosecutor. If it's a murder case, might attempt to murder, and that victim survives, then that case is handled by additional public prosecutor. Oh, I see. That is the bifurcation. So he was the additional public prosecutor on behalf of the government. So whenever those cases were on, we used to see his face become red in the evening once he comes back from the court. But he never says any bad word, or he never cursed us, or he never beaten us. Just take his off. And that means that from him I learned work and house. They are two independent identities. Don't mess up. Work pressure on house pressure on the work. That's what I refined it as. There are two watertight compartments. Don't mix up. Office or professional work is one iron safe. Put them in that once you come back home. That's I have followed that, and that is the reason you still see. I can read what is written in my shirt. I am 42 years experience with 18-year age. Huh? Yes. You are at 18. Actually, the part that amazes me, every time you have come to a lot of programs, you bring so much new information, whether it's the quizzes, whether it's the news, whether it's the temples, and then presenting it so beautiful. Tell me the secret to that one. I really want to learn that.
Yes, sir. As I see, as I told you, I have a passion for travel. Mhm, When I was in service, also when I was working in North India, mhm, I used to take off on Saturdays because being a construction site, we Mm. have that flexibility. Sometimes we used to work round the clock also. There is no limitation of time. Mm. So I used to skip Saturday and Sunday, go to the nearby tourist place. Mm. Interesting. That I always have that inclination Mhm. to travel and see new things in India, especially. Mhm, mhm, That has grown up because our teachers in the school, we have that social studies subject. There you read the history part of it, India, then the great structures in India those days. But there are very few are highlighted those days. mhm, But later on, as we travel, as we'll grow up, we learn that there are so many places, not just one place to in India. mhm, After retirement, I have plenty of time. See, before during that time, during when I was working, is almost 10 to 12 hours a work, every at least 10 hours a day, even in Mm. spite of this dealership work also. Right. Mm. Uh, I was not having much of freedom to travel, though even during my time. So after retirement, I started, okay, let us explore. I always have a passion. I always call it, I don't say India, I say incredible India. That's my favorite word Mm. Mhm, as far as India is concerned. mhm. So we used to select a state, some part of a state, not all. We cannot cover, because to cover any state of India, you need at least 30 to 40 days time. I remember when you described Himachal Pradesh, how you spent. Yes, Yeah, yes, I yes, remember. exactly. Yeah. So we used to select only particular section of the state. Mm. And my wife, she's more religious than me. She does a lot of puja and all those things. She's hell-bent, says there should be temples in the tour program. Mm. Okay, fine. Temples and other sightseeing places, we mix and make a plan. And normally we have different travel agents. So if it is south travel, I have a different travel agent to plan my schedule. If it is not, this is a different person Mm. because they are familiar with the local Mm. places. Then seeing those places, and before I go to any place, I read about that place. What is interesting? What should be seen? What should not? Lot of What planning. must see places? Must see places. And I read about. And when I started this, actually, I give this credit to Shaila. Why I'm Challenge, making yes. this presentation, I will never forget her, because when I joined ICC in 2016, Mm. I was just playing cards in the table and the lunch hall in the Cupertino Hall. Mhm. You must have seen me Yeah, sometimes yeah, there. yeah. Mhm. Yeah. And then she said, no, you fellows are playing cards. You have to support me for some. It started with a drama. Mhm. That Ganesh Chaturthi Yep, time. yep. I remember Yeah. those. We are running short on time. I'm going to take Okay. you to. Yeah. I know you start love life. We want to know your love life. How did that go? How did you get married? And any affairs along the way? Anything we'll read in the way back in the Google depths of Google or something about you? Not much. Not much. Not much. Yeah. I am a good boy. Good Of boy. course, we thought of there is one. I've got to Mm. be very frank. Of course, my wife also knows it. I Oh. told her immediately after marriage, so that no Right. headaches later on. See, Good. Let's hear it. yeah. So actually, it has come up to the level of marriage also. Mm. Both parents agreed, everything agreed, but somehow one time, I don't know why it happened, I thought that response from the other side is not that positive the way I thought. Nice. I said, okay, thank you. That's Baat it. khatam. Mm. That's it. Baat khatam. Khel khatam. Mm. That's it. Then mine is an arranged marriage. Mm. And no, normally boy goes to the girl's house to have that for the to have a first chat or whatever you call it. Not like today's dating. So uh, we had told them, okay, we'll be coming around so and so time, because that time I was working in Chennai with another Canadian company. So from Chennai, I came down to my place. Then her native place is about 20 kilometers from my native place. She's in her grandparents' house. It's about 10 kilometers from my hometown. So I told, because prior to that, my father, my grandfather, my mother, everybody has gone and seen the girl. They sent me the photo. She's good. We can have a look, and then we'll go ahead if everything is fine. Mm. So when I gone there to see her, she's not in the house. She's in the neighbor's house playing cards with her friends.
I love it. That's who cares who's coming? What? Who is coming Cards doesn't are more matter. important. Yeah. So I was just after a couple of hours, 5-10 minutes, somebody has rushed to call her. then, then we had a chat for 5 minutes in the room, and her aunt was listening from outside the door, standing right outside the door. She's listening to whatever we are talking. I could make out that. So we just, okay, and we said yes. We have seen her in January, got married in March, and she joined me in Chennai in April itself. छठ मंगनी पटवेया पंजाबी Yes. में बोलते हैं. That's right. कोई और टैलेंट है आपके जो आप हमें बताना चाहते हैं? We've seen you here in many programs, but something that we don't know about you. Share that. Some secret of some kind that we don't know. My secrets are very simple. There are not many secrets. If you ask, I will tell you one funny thing. My son, he says, after his graduation, not when he's a student, after he joined his service, he says, Papa is like a speed breaker. If suppose on any issue, any decision he wants, he in his favor. He says, tell Papa is like a speed breaker. He will ask a lot of questions, but he will approve. He will agree. That means you roll over the speed breaker, gone. Your decision is gone. But mommy is not like, mommy is red signal. No way. And I spend, my secret of my happiness is I spend a lot of time with my children. When they were kids, my children, I used to, I mean, as I told you, it's the watertight compartments. My office pressures were never shown on my children or my wife, other way around also. And I used to spend, I love spending time with my kids those days also. And now I'm playing with my granddaughter. My granddaughter, I just only one example. I told somebody earlier in the earlier one of the meetings. When my daughter-in-law, she went for this delivery of the second child. We asked her to leave the granddaughter here with us because taking care of a 3-year-old girl, and at that time it's a bit difficult for the young mother. So she with us, my granddaughter is with us for 3 months. Not a single day she said, I want mother. She's so close to me and my wife also. She spent a lot of time with me. We used to go around. I used to drop her to school. And I'll tell you one funny thing. Once I have shown her a pigeon has laid 2 eggs on the balcony of our balcony. I have shown her, you see, these are the eggs. And after weekdays, you find the small babies coming out of it. I have shown that when the babies are come out. Then you know what the question she asked? Where is their grandfather? Wow. That's, oh my God. That is my attachment with Oh, them. wow. And that keeps me angry. You have given such a good message to our seniors here. Yes, Talk about yes. how close can you be to your grandchildren. Yes, Wow. yes, What a that great keeps example. Yeah. You- And of you course, know, I was in. This program could continue for another Yeah, 2 I hours. I mean, the way you Yes, stories. And I Yes. will do that somewhere along the way. We used to do another program, which we'll try to revive, the Life Yeah. Journey program. Yeah, I know Usi baatein that. I kare. know. In Cupertino, you are doing it. I know That's that. right. We Yes, karte the. yeah, But yes, today yes. we have to cut you short here. No problem. Bahut Thank dhanyawad. you. Okay. Thank you. And so nice that you woke up early morning and Yeah. Really appreciate They become a routine now. that's true too. All right, ji, big round of applause for Sharma ji. Thank you. Thank you. So beautiful. कैरम बहुत अच्छा खेलते हैं कैरम बहुत अच्छा खेलते हैं आप Yeah, ब्रिज भी जी. खेलते थे ना? ब्रिज भी खेलते थे? No. I don't know Carrom. it. अच्छा, Carrom board again. Carrom. My father has taught me that. अच्छा. Even though we are scared of him, it's on Sundays carrom board match. Myself and my father, my sisters, other. Okay, sorry. Please continue, sir. This Thank you. Endless. Yes. We'll have a more detailed. I Yeah. don't think we even scratch the surface of the kind of things you're involved in. So Yeah. we will do another one. So with that, I invite Veena Mishra ji. Veena Mishra ji is our third person, and we have after that one more person also. So stay along. I think this program is scheduled to go till 6:30. So please have patience and stay with us. Such interesting stories. Veena ji aage. Veena Mishra ji. Veena ji, welcome. आपको हमने ट्राई वैली के थ्रू ही जाना है. आप ट्राई वैली में आई हैं, and I know योगेंद्र जी आपको लेके आए हैं इस प्रोग्राम में, and you are our very very special person. कि जब भी मैं आपको देखता हूँ ना,
देखता हूँ एक बड़ी सीरियस, इंटेलिजेंट, हाई आईक्यू, मतलब like a professor to the ज्ञानी word would be very appropriate in that. आप अपने बारे में बताइए, कहाँ पे पैदा हुई, कहाँ पे schooling हुई, थोड़ा, and then college, and how did you end up in USA after that? Just share that journey with us. जरूर। मैं बनारस में ही पैदा हुई, बनारस में ही ब्रॉट अप हुआ मेरा। मेरी पूरी फैमिली एजुकेशन लाइन में है। इवन मेरी नानी भी हेड मिस्ट्रेस थी और हमारे पेरेंट्स दोनों ही इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे और घर में काफी हाईली पीएचडीज भी हैं, सिस्टर्स भी काफी हैं। तो हम लोग मेनली एजुकेशन लाइन से ही हैं और साथ ही लिटरेचर से हैं। तो फैमिली में ही लिटरेचर बहुत डिस्कस होता था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डिस्कस होता था। जहां जहां हमारे पेरेंट्स का इंटरेक्शन होता था, स्कूलों से जाते थे इंस्पेक्शन के लिए, वहां से जो जो फनी चीजें, इंसिडेंट्स लेके आते थे, घर में डिस्कस करते थे और फिर बताते थे उसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। तो मेनली हमारे पास दो चीजें थी जो अमानत में हमारे पेरेंट्स से हमको मिली थी, एक एजुकेशन और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों चीजें पेरेंट्स से मिली। कितने सिबलिंग्स थे, भाई बहन कितने हो गए आप अपने? हम लोग तो 5 बहन 3 भाई। और उस जमाने में लेडीज को पढ़ाई ज्यादा नहीं करने देते थे, तो योर फैमिलीज एजुकेशन, कोई उसमें क्वेश्चन ही नहीं था कि एवरीबॉडी इज गोइंग टू स्टडी। हाँ, क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन सब्जेक्ट डिसाइड पापा ही करते थे, पेरेंट्स ही करते थे। उसमें फ्रीडम नहीं थी कि शादी करके घर जाना है, तो आपके लिए क्या सब्जेक्ट डिसाइड हुआ? हमारे लिए, मुझे तो साइंस में इंटरेस्ट था, मैथ्स कमजोर था, साइंस छुड़वा दिया गया। म्यूजिक में इंटरेस्ट था, लेकिन म्यूजिक क्लैश कर रहा था ऑप्शनल में संस्कृत के साथ, इसलिए म्यूजिक सितार था, छुड़ा दिया गया। मतलब वो लोग डिसाइड करते थे कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना है, हमारे फ्यूचर में कौन सा सब्जेक्ट हमारे काम आएगा। सो कौन सी डिग्री आपने हासिल की? सारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कि नहीं, हमारे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था। अच्छा, तो बीए तक हम लोग थे वहां, उसके बाद बरेली आ गए थे। अच्छा, तो आपने मास्टर्स की हुई है उसके बाद? हाँ। वो किस सब्जेक्ट में है? किस सब्जेक्ट में है? हमारा हिंदी है, लिटरेचर। अच्छा, हिंदी लिटरेचर। तो वही बरेली से वो डिग्री आई आपकी? नहीं, हिंदी लिटरेचर। हमने बीए किया था, बीए फाइनल दिया था, उसी साल मेरी शादी हो गई। अच्छा। और मैं बॉम्बे आ गई, फिर मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एमए किया। अच्छा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। शादी के बारे में बताइए, थोड़ी बहुत डिटेल जितनी शेयर कर सकती हैं, कैसे हुई? हाँ जरूर, शादी के बारे में तो बॉम्बे में तो लव अफेयर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली से मैं हूँ और ऐसे शहर से मैं हूँ जहाँ की लव अफेयर मतलब भय, डर, सवाल ही नहीं है। कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा, पेरेंट्स के पास पहुंच जाएगी बातें। इवन आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी शादी में भी हमने नहीं देखा था इनको कभी। अच्छा। और ना हमसे पूछा गया था, ना हमको बताया गया था, ना हमको फोटो दिखाई गई थी। बस एक बार स्टूडियो में जाके मेरी फोटो ली गई थी कि प्रपोजल के लिए भेजना है। I see. उसके अलावा मुझे शादी का कुछ भी ज्ञान नहीं था। बिल्कुल अननोन फैमिली, अननोन प्लेस, सब कुछ अननोन था। अननोन था। So किस तरह के हस्बैंड थे? What did she do and where did he work? Actually, he was working in Bhabha Atomic Research Center as a senior scientist. अच्छा, senior scientist. I see. So I came to Bombay after marriage. अच्छा, तो बॉम्बे में क्या क्या किया आपने? बॉम्बे में मैं आई तो एटॉमिक एनर्जी में ही थी। हमको वहां पे टाउनशिप में हम लोग को एकोमोडेशन मिल गया था। तो वहां पर मैं अपने बड़े लड़के को केजी में छोड़ने जाती थी। तो जब छोड़ने जाती थी तो रोज हमसे कहता था, तुम भी क्यों नहीं आती हो पढ़ाने, तुम क्यों नहीं आती हो पढ़ाने। फिर मैंने एक बार अप्लाई कर दिया। मैंने कहा चलो मैं अप्लाई कर ही देती हूँ, वैसे जॉब के मूड में थी नहीं मैं। फिर मैंने अप्लाई कर दिया, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो हमारे लड़के को बड़ा प्राउड फील होता था, माय मदर इज टीचर। और उसके बाद छोटा आया, उसको भी बहुत लगता था प्राउड, माय मदर इज टीचर। फिर लेकिन बाद में जब ये कॉलेज में आए तब इनको मदर का टीचर होना खलने लगा। They were so angry. Every year hurdle is my mother. I don't want my mother here.
सो कॉलेज में इन लोगों ने नहीं एंजॉय किया, स्कूल लेवल तक तो इन लोगों ने बहुत मदर का एडवांटेज लिया, एंजॉय किया, लेकिन कॉलेज में ये लोगों को लगा कि नहीं, मदर नहीं होनी चाहिए। और इनको ये लगता था कि हमारे नाम से कोई नहीं जानता, सब लोग मैडम मिश्रा सन, मैडम मिश्रा सन। और That's what I चांस was की going to बात, say. The jealousy हो रही है कि mother is so famous there in the school, huh? और जब छोटा वाला हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो बहुत खुश था कि चलो शांति मिली, बीआरसी स्कूल से छुट्टी मिल गई, अब वहां मुझे लोग रजनीश के नाम, मेरे नाम से जानेंगे। लेकिन जैसे ही वो गेट में घुसा, एक ग्रुप गर्ल्स का बैठा था, उसमें से एक ने कहा लुक लुक मिश्रा टीचर सन इज कमिंग। आके घर में इतना गुस्सा हुआ, वहां भी पंगा ले बैठी मिश्रा टीचर जाकर। तो क्या क्या पढ़ाती थी वहां पे आप स्कूल में, क्या क्या पढ़ाती थी, कौन से सब्जेक्ट्स? हमारे सब्जेक्ट केवल हिंदी था, मैं ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन में ही रही, एडमिनिस्ट्रेशन में रही, लेकिन हिंदी संस्कृत। लेकिन मैंने टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए भी मैंने कभी टीचिंग नहीं छोड़ा। डबल ड्यूटी करती थी, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे टीचिंग से बहुत लगाव था और मैंने टीचिंग कंटिन्यू रखा था। 1 या 2 सेक्शन अपने पास रखती थी बोर्ड एग्जाम। अच्छा, मुझे इंटरेस्ट टीचिंग में ज्यादा था एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन बस ऊपर वालों का प्रेशर था कि नहीं आपको ये पोस्ट लेनी पड़ेगी, आपको ये पोस्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो कितनी देर चलती रही है टीचिंग आपकी वहां पे? मतलब कितनी देर चलती रही टीचिंग? Did you retire from that? 20-25 साल? 35 years. 35 years उसमें? अच्छा, Yes. अच्छा। 72 I joined and 2008 I retired. You know, मेरे कई क्लासमेट्स BARC में काम करते थे, कभी बाद में बात करेंगे। I bet you we have some common friends there. Oh, sure. अच्छा, तो उसके बाद फिर रिटायर होके आप वही बॉम्बे में रही कि क्या, कैसे चला? एक्चुअली तो बॉम्बे में ही थे हम, रिटायरमेंट के बाद भी आना जाना चलता था, 6 months यहाँ 6 months वहाँ। लेकिन जब से ये कोरोना शुरू हुआ है तब से मैं कंटिन्यूअस यहाँ रह रही हूँ। अच्छा, तो और क्या क्या ट्रैवल किया हुआ है आपने, क्या क्या, कितनी दुनिया देखी अलोंग द वे? दुनिया तो उन बच्चों ने बहुत ही दिखा दी, पूरी दिखा दी। कहाँ कहाँ घूम के आई हुई हैं? जापान गए हम, कनाडा गए, और आपको क्या क्या गिनवाऊं मैं, न्यूजीलैंड गए, लंदन गए, स्विट्जरलैंड गए, अच्छा स्विट्जरलैंड, अच्छा, फिर आपका अफ्रीका, तंजानिया गए, सफारी में गए, अलास्का गए, काफी जगह देखा। सब घूमे हुए काफी। और कौन से टैलेंट्स, कोई म्यूजिकल टैलेंट्स, कोई शेरो शायरी, पोएट्री? यू आर सो वेल रेड इन दैट रिगार्ड, उसके बारे में बताइए। हाँ, मेरा मेन इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में था, इवेंट मैनेजर, ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्स को यूज करना। मेरे पास जो भी अप्रोच आती थी, कोई प्रोग्राम लेके कि ये प्रोग्राम अरेंज करिए, इस प्रोग्राम के लिए कुछ आइडिया दीजिए, तो मैं रिसोर्सफुल रहती थी हमेशा। मेरे कॉन्टेक्ट्स बड़े अच्छे थे, कहना चाहिए कि कोई भी नेशनल प्रोग्राम हो तो भी उसमें भी हम अपने कॉन्टेक्ट्स को काफी यूज कर लेते थे और काफी हमको रिस्पांस भी अच्छा मिलता था। काफी हमने किया, बहुत नेशनल लेवल पर भी प्रोग्राम्स किए और मिलता था। साइंस एग्जीबिशन जब भी रहता था तो किसी ने हमसे क्वेश्चन किया कि बीइंग अ लिटरेचर पर्सन, हाउ योर स्कूल इज गेटिंग एवरी टाइम फर्स्ट प्राइज इन साइंस एग्जीबिशन नेशनल। तो मैंने उनको बताया कि बीआरसी है ना, हमारे पास पेरेंट्स है ना, मैं पता लगा लेती हूँ कौन किस फील्ड में है, कहाँ है, उसको ऑब्लाइज कर लेती हूँ। और वो लोग भी अच्छे थे, सब आ जाते थे हेल्प करने के लिए। You had the best of the mind, सारे साइंटिस्ट जो हैं BARC में, तो that's very, you know, high level of talents. लेकिन बस वही है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको रिसोर्स अपना यूज करना पड़ेगा। You have to network and all that. नेटवर्क होना चाहिए। तो उस मामले में हमारा अच्छा था, काफी अच्छा था, नेटवर्क अच्छा था। और ऑर्गेनाइजिंग में मैं आगे रहती थी, ऑर्गेनाइज करना। और एज ए प्रिंसिपल भी मैं हर एक्टिविटी में इंडिविजुअली पर्सनल इंटरेस्ट लेती थी।
अगर कहीं कंपटीशन में जाना है तो मैं फर्स्ट पर्सन होती थी कि प्रैक्टिस में भी जाऊं, रिहर्सल में भी जाऊं और उसके पीछे पड़ जाऊं। जितना भी करना है, जितना मैं कर सकती हूँ मैं जरूर करूंगी और उसको ऊपर तक लाऊंगी। मतलब वो एक भूख रहती थी कि माय टीम शुड कम फर्स्ट, उसके लिए जो भी करना हो मैं करूंगी। दैट वाज माय फीलिंग। तो बच्चों को आपने रेज किया, उनके बारे में बताइए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दोनों यहीं पे हैं? हमारे दोनों बच्चे यहीं पे हैं। एक तो पहले न्यूयॉर्क में था, अभी यहाँ आ गया है कैलिफोर्निया। दोनों बच्चे हमारे फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी हैं। अच्छा। और दोनों यहीं पर, एक का तो अपना ओन बिजनेस है और दूसरा पीपीटी में, पीडीपी है ना, पीडीपी में है। पीडीपी। अच्छा। तो if you had to teach these children again, what would you do anything differently? Or the world is, you did the best, and I'm always looking back कि किसी बच्चे को कुछ और सिखाना था, चलाना था, कैसे गाड़ी चलनी चाहिए थी। Any thoughts in that regards? नहीं लगा मुझे, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ तो बच्चे इतने टाइट हैं, इतने बिजी हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है कि कुछ इनको सिखाया जाए। शुरू में छोटे थे तो कुछ मेरे साथ बैठ के हिंदी सीखते थे, राइटिंग एंड रीडिंग, और बोलना तो सीख गए। हमारे ग्रैंडचिल्ड्रन चारों हमारे हिंदी बोलते हैं बहुत अच्छी, वो मेरे यहाँ रहने की वजह से। अदरवाइज मैं चली जाऊँ तो फिर भूल जाते हैं, फिर टूटी फूटी बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, स्टोरीज बचपन में इन्होंने कहानियां बहुत सुनी हमसे, बिना स्टोरी के सोते नहीं थे। 2 कहानी, अच्छा कल 3 कहानी, अच्छा चलिए 1 कहानी। तो स्टोरीज इन्होंने काफी हमसे सुनी है। और अभी भी मेरा एक ग्रैंडसन है, ब्रेकफास्ट टाइम पे हमसे बात करता है। अच्छा। कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ऐसा होना चाहिए, ये गलत है ना, ये इसको सही करके बताइए, ये बताइए, वो बताइए। कितने साल का है वो? 12th में गया है सर। 12th में गया अभी? Wow, that's really amazing. To have that level of interest at that level. हाँ, वो इंटरेस्ट लेता है ग्रामर में। और हमारी जो बड़ी ग्रैंड डॉटर है वो तो राइटिंग भी करती है थोड़ी बहुत, और लेकिन उसको बहुत इंटरेस्ट है लिटरेचर में, काफी जानती है लिटरेचर के बारे में। आपसे पूछते हैं कि कौन से करियर चूज करें, क्या करें, उसमें क्या सलाह देती हैं आप उसमें? हमें तो लगता है कि यूएस के बच्चों को सलाह नहीं देनी पड़ती है। ग्रैंड पेरेंट्स they don't ask, or do you feel कि देने की जरूरत नहीं? या तो हम यहाँ के सिस्टम से फैमिलियर नहीं है, वो भी एक कारण है। That's true. कि यहाँ के सिस्टम से हम बिल्कुल फैमिलियर नहीं है कि यहाँ का क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं। बल्कि फिर हमारे बच्चे हमको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे तुम वहाँ करती थी उसी को यहाँ पे ऐसे करते हैं। तो एंड पेरेंट्स आर वेरी अवेयर, दे आर देयर विद फुल टाइम विद देम, तो हमारी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। But if you had to give a message, what would that be? क्या करो जा अपने grandchildren को, if you, as you look at your life and see कि कहाँ पे मैं इनको इंस्पायर करूं, कि वो कहाँ पे करेंगे? उनको तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, शुरू से कहती आई हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी कहती आई हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। कॉन्फिडेंस, ऑनेस्ट, और कहते हैं लगन होनी चाहिए। कोई काम करने में है तो जी जान से लग जाओ, उसको पूरा करके छोड़ो, बीच में मत छोड़ो। कॉन्फिडेंस के साथ करोगे तो जरूर सक्सेस मिलती है। परिश्रम करोगे कभी फेल नहीं होगे, हमेशा कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड मिलेगा ही। तो जिंदगी में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है और हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। उसमें जो आप बोल रही थी, उसमें पैशन ढूंढने में, यू थिंक यू कैन हेल्प योर चिल्ड्रन? के ऑब्जर्व करते हो, उनके देखते हो कि किस तरफ है, एंड देन कैन यू गाइड देम कि इस तरह का पैशन है तुम्हारा, इसमें जाओ, ये करो? No, I don't think. हाँ, अपने यहाँ इंडिया में तो बच्चे स्पेशली आते थे पूछने के लिए यही बात जो you are a teacher, you probably can see कि किसका क्या potential है और क्या कहाँ वो जाना आके चाहिए। पूछते थे तुरंत। और कभी भी जो हमसे निकल चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं कॉलेज से, वो भी आके कहीं इंटरव्यू, एक बार हमें बहुत, मुझे हमेशा याद रहता, अच्छा लगता है। एक लड़का गया सिंगापुर इंटरव्यू देने, वहाँ इंटरव्यू देने लगा तो वो जो चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट था सिटी बैंक का, उसने उससे पूछा तुम कहाँ से हो? बोले बॉम्बे से। कहाँ से? अणुशक्ति नगर से। यार मिश्रा टीचर को जानते हो?
बोला हाँ मिश्रा टीचर को जानता हूँ ना, आई एम फैन ऑफ। उसने आया कॉलोनी में आके मेरे घर आया स्पेशली बताने के लिए, मैम मैं इंटरव्यू देने गया था, वहां पे वो सज्जन मुझे मिले, उन्होंने आपको लिए पूछा, आपको नमस्ते बोला, तो अच्छा लगा। टीचिंग, रियली Teaching is a very noble profession. There is no वेरी question. वेरी नोबल। And you mold people's lives, really. Yes, yes. That makes a very big difference then. सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अपने सीनियर्स को क्या मैसेज दोगी, अपने इनको इनकी लाइफ मोल्ड करने के लिए, जितनी बच गई है अभी, उसमें क्या मैसेज है आपको इन सीनियर्स के लिए? सीनियर्स आपके ट्राइवली में जो सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो सुन रहे हैं आपको। हाँ, मैं तो सच पूछिए तो यहाँ पे बहुत बोर हो रही थी। मुझे लगता था मेरा टिकट कटाओ, मुझे वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा सारा सर्कल वहाँ है, मेरा नेटवर्क कहाँ है, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ अकेली बैठ के। लेकिन जब से आपके यहाँ प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया है, तब से एक इंटरेस्ट आ गया, सब रिवाइज हो रहा है और बहुत दिल करता है कि ये भी शेयर करूं, वो भी शेयर करूं, वो भी शेयर करूं, और मैं हमेशा तैयार बैठी रहती हूँ। बलजीत जी पूछती है, मैं कभी भी कहती हूँ यस यस बिल्कुल मैं दे रही हूँ आपका प्रोग्राम। जैसे कहते हैं ना भूखे को खाना मिल जाए, उनका पूछना और मेरा हाँ कहना एक साथ चलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग बहुत उत्साह, मतलब काफी लोगों में उत्साह है, सुनते हैं ध्यान से, अच्छे से इंटरेस्ट लेते हैं, एनकरेज करते हैं। तो सच पूछिए तो आपके इस ट्राइवली ने तो लाइफ दे दी, मुझे तो दे ही दी। आपने भी ट्राइवली को लाइफ दी है, जिस तरह से आप चीजें लाई हैं, बड़े क्लासी प्रोग्राम, बड़े हाई लेवल वाले प्रोग्राम आपने कंट्रीब्यूट किए हैं। सो वी रियली डू वांट टू थैंक यू। इट्स अ विन विन सिचुएशन, आपने हमें दिया और हमारी तरफ से भी जो आपको मिल रहा है बहुत एनकरेजमेंट मिला, और इसीलिए मेरा उत्साह पहले जैसा वापस आ गया। जो आपने कहा ना अभी तो मैं जवां हूँ, वो बिल्कुल अप्लाई करता है। बिल्कुल। आप जरा गाना गा दीजिए, कोई गाना, अभी तो मैं जवान हूँ, कुछ बताइए, मुझे जवानी का गाना गा के जाइए, आप ऐसे थोड़ी जाने। गाना ही तो मुश्किल है। गाना ही तो मुश्किल है। यू नो, मैं भी नहीं गाता था, मैं धीरे धीरे अभी कभी कभी मार देता हूँ लाइनें। अब ये सारा आईसीसी का असर, सारी उम्र कभी नहीं गाया था तुम। वेट लॉन्ग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी लाइफ शेयर की। Someday we'll go beyond this also, we'll get into more details, but thank you so much for sharing. Thank you. आपके लिए तो मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम की जान हैं। आप really, you're always there for me and you are the backbone of any special thing that we do. And इतनी knowledge और इतनी information है आपके पास, और इतना अच्छा present करती हैं आप कि मजा आ जाता है। Thank you so much, really nice. Thank you बलजीत जी, आपका encouragement है और कुछ नहीं है। That's really good. तोते को जगा दिया आपने। Thank you so much. All right, okay, we'll move on to our fourth person who is very very jawan, the jawanest in this group here. ज़ेबा जी को पेश किया जाए। ज़ेबा जी, सारे टफ वाले क्वेश्चन आपके लिए सेव किए हुए हैं मैंने। हम हाजिर हैं, आप जो पूछिए हम हाजिर हैं। आपसे सबसे पहले यही पूछना, कितनी दफा जेल में होके आई हैं आप पहले? जिम। just kidding. जिम मैं नहीं, आपने आपने सुना होगा, अगर ये सुना होगा कि कोई जिम जा रहा है तो मेरी बेटी के बारे में सुना होगा, मेरे बारे में नहीं, मैंने जेल का पूछा, आपने आजादी जेल। अब ये बताइए, आजादी के टाइम पे आप कितने साल की थी, और आपको पता था कि आजादी जब मिली हिंदुस्तान को? आजादी मिली है तो मैं उस वक्त, मतलब मैं 39 की बॉर्न हूँ, 47 में 8 साल की हुई उस वक्त। हाँ 8 साल की हुई। हाँ, तो उस टाइम आपको उस वक्त मुझे ये नहीं समझ में था मुझे कि आजादी मिली है तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन घर में जो बातें होती रहती थी वो मैं अभी तक मुझे थोड़ी बहुत याद है। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उस जब आजादी मिली है उस वक्त में ये था कि हर एक को, जो मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब में थे उनको कुछ फॉर्म दिए गए थे कि वो भर के बताएं कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जितने भी मुस्लिम गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। तो शायद वो फॉर्म पापा के पास भी आया था। तो बात ये चलती थी कि पापा ने जब फॉर्म भरा था तो उसमें उन्होंने अपनी चॉइस लिखी थी, आई वांट टू बी इन इंडिया।
तो उसके ऊपर बहुत लोग आते थे, समझाते थे कि नहीं तुम रॉन्ग कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। तो वो सब कुछ मैं सुनती थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या बातें हो रही है, क्यों हो रहा है ये। पर मैं जानती थी कि कुछ जो भी पापा ने किया है वो सही किया है। पापा कहते थे कि मुझे अपने फैसले पे मैं अटल हूँ, मैं बदलूंगा नहीं फैसला। तो हम लोग भी कहते थे कि रहे रहे जो पापा कर रहे हैं सही कर रहे होंगे, हमें ये नहीं मालूम था कि क्या फैसला है, क्यों है। बस हल्का हल्का ये समझ में आता था कि इंडिपेंडेंस हुई है, लड्डू खाने को मिले थे, जब स्कूल गए थे तो लड्डू मिले खाने को। फिर घर में आए तो मालूम हुआ कि आज घर से बाहर मत निकलो, घर में रहो। एक डर का भी एटमॉस्फेयर था। तो कुछ हम समझ नहीं पा रहे थे ये हो क्या रहा है, कि इधर खुशी हो रही है, इधर घर में डर का एटमॉस्फेयर है। तो लोग जो आते थे बाहर मिलने के लिए पापा से, तो पापा हम लोगों को अंदर कहते थे घर में रहना, बाहर मत आना। तो कौन उस से वक्त शहर में थी आप? कौन से शहर में थी उस टाइम? उस वक्त में हम, अब याद नहीं कौन से शहर में थे, शायद उरई में या झांसी में, कहीं ऐसी जगह थे। झांसी में थे हम लोग। झांसी। अच्छा अच्छा। तो कितने भाई बहन थे? हम लोग 7 भाई बहन थे। मतलब अभी तो 2 भाई की डेथ हो गई, 1 बहन की डेथ हो गई। तो हम लोग 4 बहनें थे और 3 भाई थे। तो मुझे याद है एक बार मम्मी ऐसे ही कह रही थी कि अपना बता रही थी कि कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई। पहले तो ये वही होता था ना कि कितने मिसकैरेज हुए, ये वो किसी से बात कर रही थी। तो बोली कि टोटल 11 थे। तो मैंने कहा हाय, सब होते तो कितना मजा आता। तो मम्मी बोली 7 में नहीं निभा पा रहे हो तो लोग तो 11 में क्या नभाते। That's true. Yeah. हम लोग सब, क्योंकि हम लोग एक ही घर में रहते थे ना, तो वहाँ ये सिस्टम तो उस जमाने में था नहीं कि हर एक का अलग अलग रूम है, कि कोई उसके रूम में ना जाए, कोई उससे अपने अपने सब रूम बंद किए बैठे हैं। तो उसमें लड़ाइयाँ भी होती थी, हंसी भी होती थी, खुशी भी होती थी, सब कुछ होता था। तो एक अलग ही लाइफ थी वो हम लोगों की। तो अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। यू आर हाईली एजुकेटेड पर्सन। हमारे घर में एजुकेशन का एटमॉस्फेयर था। पैसे से ज्यादा हमारे यहाँ एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। क्योंकि मेरे फादर को भी था कि मैं चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं उसको पढ़ाने की मुझे बहुत। तो मेरी सिस्टर बड़ी वाली जो है मुझसे 10 साल बड़ी है। और उस वक्त में जब हाई स्कूल उन्होंने किया, तो जहाँ पापा थे वहां पर हाई स्कूल से आगे, क्योंकि पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ट्रांसफर होता रहता था हर तीसरे, मोर देन 3 इयर्स तो कहीं हम लोग रुके ही नहीं। हर दफे बस सामान बनता था और फिर निकल जाते थे कहीं और। तो जब पापा जिस शहर में थे वहाँ हाई स्कूल के बाद कॉलेज नहीं था, स्कूल तक था। तो उनको ये हुआ कि क्या करें, लड़की को कैसे रखें, कहाँ भेजें, किसी रिश्तेदार के पास भी भेजना नहीं चाह रहे थे वो। तो फिर उन्होंने उस वक्त में सिस्टर का बोर्डिंग में भेजना उनके लिए बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन उन्होंने भेजा कि मैं नहीं, एजुकेशन नहीं रोकूंगा उसकी। तो क्योंकि मेरे जो नाना थे वो हेडमास्टर थे किसी स्कूल के, तो उन्होंने भी अपनी लड़कियों को शुरू शुरू में तो ऐसी, मतलब उस वक्त में भी स्कूल में नहीं भेजा, लेकिन घर पे रह के प्राइवेट स्कूल एग्जाम कराया। मेरी मम्मी ने भी हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया हुआ था। तो घर में एटमॉस्फेयर यही था कि एजुकेशन से बढ़ के कोई चीज नहीं है। तो हम लोगों का भी एजुकेशन का था कि हर जगह। तो जब मैंने हाई स्कूल किया है उस वक्त में हम लोग सहारनपुर में थे। तो हाई स्कूल करने के बाद फिर ये हुआ कि फिर ट्रांसफर हो गया अपना। ज्यादातर छुट्टियों में ही ट्रांसफर होता था, क्योंकि गवर्नमेंट भी समझती उनका स्कूल हर एक के बच्चे हैं तो उनके। तो जब ट्रांसफर हुआ तो पापा ने सोचा कि अच्छा, इत्तेफाक से वो ट्रांसफर लखनऊ में का हुआ था जब मैंने हाई स्कूल किया था। तो हम लोग आके लखनऊ में रहने लगे। तो बाद में जब फिर से ट्रांसफर हुआ तो पापा ने कहा कि नहीं, अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। मम्मी को कहा कि तुम लोग यहीं रहो सर्वेंट वगैरह के साथ, और है मैं आता जाता रहूंगा, क्योंकि इस तरह से बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई ये नहीं है कि जहाँ भी जिस स्कूल में चाहो डाल दो, उनको एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए। और फिर उन्होंने, फिर लखनऊ हम लोग ने नहीं छोड़ा। पापा का ट्रांसफर हुआ भी तो वो गए, जब तक रिटायरमेंट उनको नहीं मिला वो जाते थे। आ, कभी आ जाते थे पे उनके, मतलब कोई वो नहीं था कि आने पे कोई मुश्किल है, जब दिल चाहता था आ जाते थे, जब दिल चाहता है चल जाते। लेकिन हम लोगों को उन्होंने सिर्फ छुट्टियों में जाओ, घूम के आ जाओ, इस तरह से रखा। तो फिर जब से फिर हम लोग सब लखनऊ में रहे। सो लखनऊ में ही आपकी पढ़ाई हुई जो कॉलेज की? हाँ, हाई स्कूल के बाद से मेरी लखनऊ में पढ़ाई। तो किस चीज में आपने स्टडी किया वहां पे लखनऊ में? नहीं, तो वहां तो ये था कि शुरू में तो सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे इंटरमीडिएट तक। फिर उसके बाद बीए में आके हम लोगों को चॉइस होती थी
साइंस किस साइड में लेना है। तो मुझे लिटरेचर में या पॉलिटिकल साइंस और लिटरेचर, ये 2 चीजें मैंने बीए में आके की है। उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, बीए तक मैं कॉलेज में रही। वहां पे एक लखनऊ में कॉलेज है, करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज, तो उस कॉलेज में मैं रही। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तो उस वक्त मैंने फिर उर्दू लिटरेचर चुना, क्योंकि मुझे लिटरेचर में शुरू से ही शौक था। बीए में भी मेरे पास उर्दू लिटरेचर था, और फिर उसके बाद मैंने एमए किया, तब भी मैंने उर्दू लिटरेचर में किया। तो वहीं पे उसके बाद लखनऊ शादी यूनिवर्सिटी। हो गई। अच्छा। हाँ, बस। तो शादी का बताइए, कैसे शादी हुई? अरेंज थी कि वहां पे जो मेरे महबूब तेरे उस गाने की तरह शादी हुई? नहीं, आपको यकीन शायद नहीं आएगा कि मैंने और मेरे शौहर, उनका नाम यूसुफ था, यूसुफ ने और मैंने एक दूसरे को शादी के बाद ही देखा, शादी से पहले नहीं देखा था। अरे अच्छा। बल्कि बस सिर्फ मेरी माँ ने मुझसे एक सवाल किया था कि तुम्हारी शादी हम जिस करने को सोच रहे हैं, तुम 2 चीजें बता दो। तुम्हें, जब इन लोगों का प्रपोजल आया था तब उन्होंने कहा था कि ये 2 चीजें मुझे बता दो, तो तुम किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं हो, और ये फैमिली में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है इस फैमिली में जाने को। तो मैंने कहा मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और जहां तक इस फैमिली का सवाल है, मैंने उस देखा ही नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा बुरा क्या मालूम, आप लोग जो चाहिए वो कर दीजिए। Wow. So, but those 2 questions were very good questions that mom gave you. That बस उन्होंने permission. सिर्फ ये 2 बातें पूछी थी कि तुम किसी में इंटरेस्टेड तो नहीं हो। मैंने कहा ना, नॉट एट ऑल। और दूसरी चीज ये कि तुम्हें इस फैमिली से तो कोई खास तौर से वो नहीं है कि मुझे नहीं करना है। मैंने कहा मैं जब जानती नहीं हूँ इस फैमिली को, तो मैं हाँ या ना कुछ भी नहीं जानती कि कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, तो मैं क्या बताऊँ आपको। तो बस हो गई शादी। तो उसके बाद क्या, किस तरफ राउट चला? अब बॉम्बे पहुंच गई somewhere in there. That's where. नहीं, मैं शादी बॉम्बे के, तो मैं शादी के बाद पहुंची हूँ। या वही मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद वो बॉम्बे में ही थे, यूसुफ साहब बॉम्बे में ही थे? नहीं, ये बॉम्बे में नहीं थे, तो इंडिया में थे भी नहीं। ये इनकी तो पढ़ाई भी इनकी जर्मनी में ही हुई थी, और फिर वहीं इनको जॉब भी लग गई थी। वहीं स्विट्जरलैंड में थे, ये स्विट्जरलैंड में जॉब कर रहे थे, और फिर उसके बाद फिर उनको आना था। ये था, डिसाइड हुआ कि वो जनवरी में आने वाले थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स चाह रहे थे कि वो यहाँ आके जॉब करें। तो उन्होंने फिर, क्योंकि ये बहुत ओबीडियंट थे अपने पेरेंट्स के, अच्छा, तो वो उनको पेरेंट्स को था कि नहीं, वहां नहीं रहो, तुम इंडिया वापस आओ। तो अपनी जॉब छोड़ के उन्होंने कहा था मैं इंडिया में जनवरी तक आ जाऊंगा। तो इन लोगों को ये था कि जनवरी, बातचीत सब तय कर ली उन्होंने कि जनवरी की 24 डेट फिक्स हो गई, और ये आने वाले थे फिर पता नहीं कौन सी डेट में, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। बस शादी हो गई उसके बाद। तो आप स्विट्जरलैंड पहुंच के शादी करके, इज दैट ट्रू? कहाँ? स्विट्जरलैंड पहुंच गई, जर्मनी स्विट्जरलैंड, आप शादी के बाद सीधी वहां चले गए? नहीं, वो तो घूमने के लिए गए थे, लेकिन ये बॉम्बे आ गए थे। बॉम्बे आ गए थे। अच्छा। ये आ गए थे 1-2 महीने पहले ही आ गए थे। फिर बॉम्बे में जॉब कर ली थी उन्होंने, मतलब उसी कंपनी में, ऑर्लिकॉन्स में ही वहां थे वो। उन्होंने ट्रांसफर ले लिया था बॉम्बे का। तो ऑर्लिकॉन्स में एडवानी ऑर्लिकॉन करके वहां पे एक कंपनी थी, उसी में आ गए थे। नई जॉब नहीं थी, वही जो जर्मनी में जॉब कर रहे थे, उस स्विट्जरलैंड में थे, स्विट्जरलैंड से उसी को उन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। तो बॉम्बे में आप, you were very well connected with people. This happened over the year. But before we get into that one, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप में एक रवानी है, जवानी की रवानी है कि you really at this age, you जैसे डंडा लेके दुनिया को काबू में रखा हुआ है आपने। ये कहाँ से आई थी, ये कब आई थी, और किस इंसिडेंट के साथ को रिलेटेड, जरा सा बताइए उसके बारे में। उसके बाद मतलब मैंने डंडा तो कभी भी नहीं उठाया। बट नहीं, जिस तरह से आप बात अथॉरिटी से करती है ना, वो डंडे वाली बात होती है। तो वो कैसे आपके अंदर, कैसे वो रवानी आई, वो बताइए मुझे। पता नहीं कैसे रवानी आई। एक्चुअली मुझे शुरू से ही डिबेट्स वगैरह में मेरे बहुत, मैंने हिस्सा लिया हमेशा से। शायद मुझे याद भी नहीं कि मैं कितने छोटी थी जब से मैं ले रही हूँ डिबेट्स में। तो मैं शायद 7th स्टैंडर्ड की बात है। तो हमारी एक हिंदी की टीचर थी जो मुझे हमेशा लिख के देती थी स्पीच, और कि बोलो हर, कभी इंडिपेंडेंस डे पे, कभी किसी त्योहार पे, कभी। तो एक बार ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने मुझे एक स्पीच लिख के दी थी तैयार करने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है बोलेंगे।
और उसके बाद जब वो फंक्शन हो रहा था तो उन्होंने पुकारा ज़ेबा रोशन रज़ा, मेरा शादी से पहले नाम था ज़ेबा रोशन रज़ा। तो उन्होंने पुकारा ज़ेबा रोशन रज़ा, स्टेज पे आए, तो मैंने अपना बैग खोल के उसे ढूँढना शुरू किया कि मेरे वो पर्चा कहाँ है जिस पे मैं लिखा हुआ है। वो पर्चा मिला ही नहीं, मिला नहीं। अब मैं बैठी हूँ, उन्होंने 2 बार आवाज़ दी, 3 बार आवाज़ दी, फिर उसका डाँट के उन्होंने जब पुकारा, खैर मैं डरते-डरते गई कँप-कँपाती हुई, क्या पता नहीं क्या बोलूँगी, मगर ज़ाहिर है 2-3 दफ़े पढ़ा था तो याद तो था ही थोड़ा बहुत, तो मैंने बोलना शुरू कर दिया, बोलती रही, खैर हो गया टाइम, चली आई नीचे उतर के। फिर उसके बाद कुछ नहीं, बात खत्म हो गई। तो दूसरे दिन फिर मेरी जो एक बेस्ट फ्रेंड थी, जो हमेशा मेरे साथ में बैठती थी बेंच पे, तो उसने दूसरे दिन जब स्कूल में गए तो उन्होंने वो पर्चा निकाल के मुझे दिया, बोले लो ये तुम्हारी स्पीच। मैंने कहा ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? बोले नहीं, वो मैंने निकाल के रख ली थी। बोले क्यों? मैंने उससे लड़ाई की। बोले नहीं, मुझे बिमला बहन जी ने कहा था, उनका नाम टीचर का बिमला था, बोले बिमला बहन जी ने कहा था कि इसकी चुपके से वो स्पीच निकाल लेना इसके बैग से। तो मैं फौरन दौड़ी हुई बिमला बहन जी के पास गई, और मेरी फेवरेट थी वो टीचर। तो मैंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया मुझे? तो बोली नहीं, मैंने इसलिए किया कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। मैं नहीं चाहती कि हमारी सारी जिंदगी तुम पर्चे देख देख के बोलती रहो, Wow, इसलिए wow. मैंने ये किया। और पर्चे देख देख के बोलोगी तो कभी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होगा। वो दिन और फिर आज तक मैंने पर्चा हाथ में लेके कुछ नहीं बोला। That is so beautiful. ये तो और ट्रायल बाय उसके बाद फायर एक जैसे। और इंसिडेंट आपको बताऊं। उसके बाद क्या हुआ, एक बार जब मैं इंटर सेकेंड ईयर में थी, हम्म, ये तब की बात है, तो ये एक लखनऊ में एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ था जिसमें कैफी आजमी और मिजाज और ये सब लोग आए हुए थे, बड़े बड़े शायर। हम्म, तो हम लोग गए थे वहां पे एक हॉल में देखने के लिए। तो उसके बाद उनसे मिले मिलाए, ऑटोग्राफ भी दिया, सब हुआ। फिर दूसरे दिन हमारी जो उर्दू की टीचर थी, उनका नाम था रजिया सज्जाद जहीर। तो उन्होंने फिर अरेंज किया कि हमारे कॉलेज में उनको बुलाया गया, वहां पे उर्दू जो सोसाइटी थी उसकी तरफ से। तो उन्होंने कहा कि तुम इसको इसको स्टेज पे उनको बुलाओगी और कंडक्ट करोगे, और तुम्हें कंडक्ट करना है। मैंने कहा क्या बात कर रही हैं रजिया आप से? कैफी आजमी से जब मैं ऑटोग्राफ ले रही थी तो मेरे हाथ कांप रहे थे, आप करी कंडक्ट करने का? बोले नहीं, तुम्हें करना है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगी। खूब लड़ाई हुई, झगड़ा, मैं जाके बैठ गई। उसके बाद जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उन्होंने आवाज दी कि कंडक्टेड बाई ज़ेबा रज़ा। मैं भड़ूं, क्या करूं, जाहिर है इतने लोगों के बीच में रज़िया आपा की बात मैं टाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि बहुत अच्छी टीचर थी रज़िया सज्जाद जहीर। तो वो उन्होंने मुझे बुला के खड़ा कर। तो ये जो टीचर्स दो थी, इनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने का और मुझको कंट्रोल सिखाने का। तो मैं सारी जिंदगी इन दोनों टीचर की एहसानमंद रहूंगी। Wow. That's अभी टीचर की बात हो रही थी, बीना मिश्रा जी जो बता रही थी, टीचर्स मेक अ बिग बिग इम्पैक्ट ऑन टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है इंसान को इंसान के डेवलपमेंट में। वेरी ट्रू। फाइंडिंग गुड टीचर्स इज अ गिफ्ट, तभी तो हम गिफ्ट ऑफ कहते हैं गॉड। गुरु गोविंद दो खड़े काय के लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताओ। सो अब शायरी भी सुना सकती हैं कोई थोड़ी सी, अगर सुनाना चाहती हैं कोई और सीक्रेट हो, मुंबई की कहानियां जो गपशप है सारे सेलिब्रिटीज की इनसाइड लाइफ, वो भी शेयर कर सकती हैं। आप डिसाइड कीजिए। एक तो पहले थोड़ी सी पोएट्री सुनाइए, आपने अभी बताया उर्दू पोएट्री में कोई मैसेज दीजिए हम सबको थ्रू दैट। कोई अगर लबों पे आ रही है कोई चीज, पढ़िए जरा। अभी तो याद तो नहीं रहती मुझे, आजकल के जमाने में सब भूल गई हूँ मैं, याद नहीं रहती मुझे कोई भी चीज। कुछ सुनाइए। कैफी साहब की एक नज्म सुना दूं मैं आपको। एक्चुअली जो लोग बॉम्बे में रहे हैं उनको ये अंदाजा होगा कि बॉम्बे में जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसमें मजदूर लोग पूरा वहीं पे घर रहते हैं, जितने मजदूर होते हैं वहीं रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, सब करते हैं। और जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो उनको फिर हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, वो उनका घर नहीं रहता है। तो उसी के ऊपर कैफी साहब की ये नज्म है। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात में फुटपाथ पे नींद आएगी। यानी कुछ उनका कहना यह था कि उन्होंने कुछ लोगों को देखा था फुटपाथ पे सो रहे थे, तो उसके ऊपर ये नज्म लिखी है। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात
ना फुटपाथ पर नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, इन मकानों को खबर है ना मकीनों को खबर। हाथ ढलते गए इन मकानों को खबर है ना मकीनों को खबर। इन दिनों की जो इन मकानों में गुजारे तुमने, उन दिनों की जो इन मकानों में मकानों में गुजारे गुजारे तुमने। तुम। हाथ ढलते गए सांचों में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे तुमने। यानी जो इस बिल्डिंग की खूबसूरती है वो तुम्हारी बदौलत है, लेकिन उनको ये, इन दीवारों को ये नहीं पता कि तुम इनके अंदर बरसों रहे हो। ये जो दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामदर और जरा और हम संवारे हमने। आंधियां तोड़ दिया करती थी शमों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। यानी जो कनेक्शन किया हमने, वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वो भी हमारे हाथों से हाथों हुआ से है। हुआ है। और आज हम अंधेरे में सो रहे हैं। हम्म। बन गया कस, अब इस शेर को आप सुनिएगा। बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया। जब महल तैयार हो गया तो बन गया कसर कहते हैं महल को। बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, सो रहे खाक पर शोरिश तामीर लिए। और जिसने बनाया था वो जमीन पे आके सो गया। अपनी नस नस में लिए मेहनतों पे हम की थकन, बंद आंखों में इसी महल की ताबीर लिए। दिन पिघलता है इसी तरह सरों पर अब तक, रात आंखों में खटकती है स्याह कीर लिए। आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो। क्योंकि क्या सो रहे हो, उठो, बगावत करो, चलो हक मांगो। तो ये जो शोहरत थे उस जमाने के, वो एक अजीब सी हमें मैसेज देके गए हैं। और वही मैसेज मेरे रग रग में समाया हुआ है। क्योंकि आप ये मिस कैफियत मेरे बहुत खूबसूरत मतलब नज़्में हैं उनकी। कैफी की नज़्मों का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो आप मैसेज दीजिए, एक तो ग्रैंड बच्चों को दीजिए, एक हमें दीजिए, सीनियर्स को दीजिए, एक दुनिया को दीजिए। क्या मैसेज है आपका? सीनियर्स को तो मैसेज मेरा यही है कि जो बीत गया उसे याद मत करो, जो आने वाला है उसकी फिक्र मत करो, जो है उसे एंजॉय कर लो, दिल भर के एंजॉय कर लो। और जो हर चीज में को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। हमारा हाथ में एक नींबू है, उस नींबू को हम चाहें तो शक्कर डाल के उसकी शरबत भी बना सकते हैं और एंजॉय करके पी सकते हैं। और नहीं तो अगर उसको ऐसे ही खाने की कोशिश करेंगे तो खट्टा ही खट्टा नजर आएगा। और वो इसलिए अपनी जिंदगी को मीठा बनाना है तो जो है उसी में एंजॉय करो। कल हम क्या थे वो मत सोचो, हमारे पास ये था, हमारे पास वो था, सबके पास था। मगर आज मैं आपसे कहती हूँ कि मैं तो वहां पे एमएलए थी, मैं तो वहां, तो आप क्या जाएंगे वहां पे तहकीक करने के लिए? कोई, सब जानते हैं कि कहना अलग बात है, होना और अलग बात है। इसलिए किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि हम क्या थे। हम क्या होंगे उसकी फिक्र मत करो। आज सोएंगे सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे हमें पता नहीं। जो आज है उससे एंजॉय कर लो, खुश हो जाओ बस। और इसीलिए मैं आईसीसी को कहती हूँ बैटरी चार्जर। आईसीसी इज बैटरी चार्जर। तो ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या चैलेंज दे रही हो आप? अरे भैया, ग्रैंड चिल्ड्रन को चैलेंज देने का चाहे कुछ सुने सवाल ना ही सुने, नहीं क्या क्या है। चैलेंज थ्रो कर रही हो आप उन पे? कुछ तो करती हो कि भाई। दिल चाहता है कहने को, मगर कहती कुछ नहीं हूँ। दिल ये पर चाहता है यहाँ पे कि कह दीजिए, भाई, यहाँ पे कह दीजिए, यहाँ से। ये अपनी जो वैल्यूज हैं उनको मत भूलो। अपनी वैल्यूज को मत भूलो, अपनी मदर टंग को मत भूलो। ये दो चीजें मैं बहुत चाहती हूँ कहना। लेकिन ये कि सुनता कौन है? बच्चे सुन ले वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन दीवारें ग्रैंड सुन चिल्ड्रन तो लेती हैं, जूम के थ्रू है? पहुंच जाएगी आवाज, फिक्र मत कीजिए उसकी। पता नहीं दीवारों के पहुंचेगी भी कि नहीं। कान होते हैं और जूम के भी कान हैं, उसमें पहुंच जाएगी। बता दीजिए जोर से, और कुछ कहना उनको बता दीजिए बस चिल्ड्रन। उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने जो हमारी वैल्यूज हैं, हमारे जो संस्कार हैं, उनको जिंदा रखना हमारा काम है। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, कुछ भी हो जाए, मगर रहेंगे हम इंडियन। उसको हम नहीं भूल सकते कि वी आर इंडियंस। आप कहीं भी चले जाएं, मगर अगर आपके पास, कितने दिनों से आप यहाँ हैं, आपके पास सिटीजनशिप मिली हुए कितने दिन हो गए दिनेश भाई? मैंने 76 77 में, मुझे 40 से ऊपर हो गए सिटीजन बनने 40 से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ बिलोंग, किसको बिलोंग करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? वो तो दिल्ली वाला हूँ। दिल्ली वाला, इंडिया है ना, इंडियन ही दिल है कहलाएंगे ना। हिंदुस्तानी, उसमें तो कोई बस क्वेश्चन है दिल है वो, ये मत भूलो कि हम हैं हिंदुस्तानी। तो बस जो नहीं। ये लोग, जब लोग ये भूल जाते हैं कि हम हैं हिंदुस्तानी, तो अपनी फिर हमारी वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। हमें जिंदा रहना है, हम मर जाएंगे। अगर वैल्यूज खत्म हो गई तो हम खत्म हो जाएंगे। ये लोग क्यों नहीं समझते?
हमको बस यही कहना है कि प्लीज सब कुछ करो, यहाँ की तहजीब अपनाओ, यहाँ की जुबान अपनाओ, मगर ये मत भूलो कि हम इंडियन हैं। देसी को नीचे नजर से मत देखो, कह रहे वो तो देसी है, देसी नहीं होना कोई बुराई नहीं है, कोई नीचा नहीं होता है देसी होने से। नो, आई एग्री विद यू। इसीलिए आईसीसी के प्रोग्राम मेरा इन्वॉल्व होना, मैं ज्यादा बच्चों से बात नहीं करता, बट दे आर सीइंग कि किस तरह से मैं इन्वॉल्व हूँ, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी देखते हैं और धीरे धीरे रब इन करेगी। आई ऑलरेडी बिगिन टू सी उनकी जो बातों में कि क्या करते हो, कैसे। नहीं तो वो तो है, मैं मतलब अब जाहिर है हमारे बच्चे तो खुश हैं इस बात से कि हम बिजी हैं, जितना बिजी रहते हैं उतना वो खुश होते हैं कि आपको। और मुझे यहाँ तक लाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो मेरी बेटी है, तो उसने मुझे यहाँ पहुंचाया जबरदस्ती, नहीं तो मैं तो पड़े पड़े शायद डिप्रेशन का शिकार होकर मर भी जाती। I know you shared that story that, but बच्चों को मैं सारे ये WhatsApp मैसेजेस भेजता रहता हूँ, सारे आईसीसी के, वो चाहे पढ़े ना पढ़े, बीच में मुझे खबर लग जाती है कुछ पढ़ भी रहे हैं। So never give up on that. Never give up on that. ठीक है, लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं इंटरेस्ट लेते, धीरे धीरे होगा, बिल्कुल नहीं लेते। चलो बट और कोई चीज आप शेयर करना चाहती हैं? We are reaching 6:30 टाइम। कोई और रहस्य, कोई गपशप, कोई किसी एक्टर ने कुछ किया था, गड़बड़ की थी, इलीगल बच्चे पैदा किए थे, बता दीजिए अभी जो आपको मालूम। इलीगल बच्चे That's all right. All right, thank you so much. Big round of applause for Zeba ji. What a wonderful life she has मुझे lived. 5 मिनट बात करने के देंगे आप मुझे? हाँ जी, 5 मिनट में बोल सकती हूँ? Sure. आप 10 मिनट लीजिए आप। लीजिए प्लीज। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी अपनी जूम की दुनिया के दोस्तों से कि आज दिनेश भाई ने जो प्रोग्राम आपके सामने रखा, ये हमारा 7th एपिसोड था, और 7th एपिसोड के बाद में हम यानी मैं, मेरी ऑन एयर ऑनलाइन बेटी पीयूष, उसको भी जरा सा कर दीजिए, मेरी ऑनलाइन बेटी पीयूष को हाईलाइट कर दीजिए बीना जी। मैं जेबा जी की ऑनलाइन बेटी हूँ, मेरा नाम पीयूष है। श्रीवास्तव। हाँ जी, और मेरी ऑनलाइन भोपाल से सुशीला, जिसने मेरा साथ बहुत दिया है, सुशीला डाटे भी खाइए। सुशीला जैन सामने आ जाइए, ये आ गई। हम तीनों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत थैंक्स। दिनेश भाई साहब, सासू माँ मेरी बहुत अच्छी है। हम तीनों आप मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत लविंग नेचर है इनका। और आपने बहुत बढ़िया कंडक्ट किया है प्रोग्राम, मजा आ गया। ये तो बहुत अच्छा अग्रवाल भाई साहब जेबा जी आगे भी चलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दिनेश जी, बहुत अच्छा। वालों से